Good morning, friends. Today I am going to solve out the surface area and volumes. First is cuboid. Cuboid is having L, B, H. Length is L, breadth is B, width and H is height. This is the B, this is L and this is height respectively. And total surface area is 2 into, because this is having 6 sides. So 6 sides से मतलब जैसे L ये वाली जो साइड होगी इसका आंसर हो जाएगा B into H. ये B into H हो गया, ये भी B into H हो गया, ये L into B हो जाएगा, ये भी L into B हो जाएगा ऊपर वाला, और इधर वाला हो जाएगा आपका H into B, H into B हो जाएगा, H into B हो जाएगा, और इधर वाला हो जाएगा आपका H into L, H into L, H into L. सो ऐसे करते करते हमारे पास 2 into LB plus BH plus LH आ जाएगा. चलो 6 sides, 2 plus 2 4, 4 plus 2 6. Then volume of the cuboid is area of the base. This is the area of the base is L into B and into height. So length into breadth into height. LBH. So we will having cubic units. Cubic units होंगे इसके, जैसे m क्यूब हो गया, cubic foot हो गया, cubic सेंटीमीटर हो गया, ऐसे होगा. mm क्यूब हो गया, cubic. Then diagonal of the cuboid. Diagonal of the cuboid होगा यहाँ से, जैसे A और C dash. A C dash will be the diagonal of the cuboid. So this diagonal is equal to under root of L square plus B square plus H square whole under root. ये L square plus B square plus H square का under root हो जाएगा, diagonal of the cuboid. Then area of the 4 walls of a room. L into H, L into H plus B into H plus B into H. So this will be area of the 4 walls. एरिया ऑफ द 4 वॉल्स कौन सी होंगी? 1 2 3 4, ये वाली और ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड. सो 1 2 3 4. तो इसका हो जाएगा L इंटू बी और H इंटू L, H इंटू L and B इंटू H. So this is 2 we will take common, and 2 into H we will take common, L plus B आ जाएगा. So now if move on towards the cube, if the length of the edge of the cube is, each side is A, so total surface area is 6 because 6 sides are there. तो एक साइड की कितनी हो जाएगी? A into A. सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? A into A. So 6 sides हैं तो 6 into area square. So volume of it is A cube. Diagonal of the cube is this much. ये diagonal हो जाएगा AC dash और ये हो जाएगा under root 3A, इसकी वैल्यू हो जाएगी. Next we move on towards the right circular cylinder. So this is a cylinder and area of the base is pi r square. This is r is the radius, इतना radius हो जाएगा इसका बेस का. Curved surface area is equal to 2 pi r h. That is equal to perimeter of the base. इसका जो perimeter होगा वो होगा 2 pi r और into height. Height is this much center to center. This is center to center. इसके जो center से इसके center तक h है. So इसे multiply कर देंगे. Total surface area is equal to curved surface area plus area of the circular ends. So 2 pi r h plus 2 pi r square. 2 pi r h तो हमने कर्व सरफेस एरिया भी निकाला ही है, और 2 pi r स्क्वायर सर्कुलर एंड्स का एरिया, इसका एरिया हो जाएगा 2 pi r स्क्वायर और उसका हो जाएगा pi r स्क्वायर. सो 2 pi r स्क्वायर. सो वी टेक अप 2 pi r कॉमन, h plus r स्क्वायर and h plus r sorry, and then volume is pi r square h, area of the base into height. Then अगर तो Pythagoras, this is a cone. So cone की शेप आ गई है, तो इसमें L स्क्वायर, दिस इज कर्व्ड लेंथ, ये जो वाली हाइपोटेन्यूस है, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. सो दिस इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई r इंटू L. टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस. कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाला है पाई r इंटू L. L ये हो गया, ठीक है. कर्व्ड है ना, तो इसलिए कर्व्ड वाला ले लिया हमने. Area of the base is equal to pi r L plus pi r square, pi r common, L plus r square units. So next is volume of the cone. So now volume of the cone is 1 by 3 pi r square h. 1 by 3 into area of the base into height. Area of the base आपका pi r square हो गया. Then right circular hollow cylinder. Hollow cylinder है ये यहाँ पे है और इसके बीच में hollow है, ये खाली है बीच में. तो let r and r be the external and internal radius of the hollow cylinder of height h. Height is from this center to this center. ये इतनी height है इसकी, h लेते हैं इसको. Area of the each end is equal to pi r square. तो pi r square हमें लेना था, लेकिन हमने क्या करना है, इसका लेना है. This is r, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये चीज हो जाएगी r. इसकी जो बड़ा वाला आ रहा है, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा. तो हमने वही लिया r माइनस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर.
सो पाई आर स्क्वायर होता है, वैसे आर माइनस आर होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। ये स्मॉल, ये कैपिटल आ रहा है, ये स्मॉल आ रहा है, तो 2 पाई एच कॉमन हो जाएगा, आर प्लस आर इसका हो जाएगा आंसर। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 pi r square minus pi r square. So 2 pi r plus r will be common, r plus h minus r. Then the volume of the material, external volume minus internal volume. Pi r square h minus pi r square h. That is equal to pi h common हो जाएगा, r square minus capital R square minus small r square will be the answer of this. Then we move on towards the sphere. For a sphere of radius r, we have surface area is equal to 4 pi r square. एंड वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फेयर होता है, ये 3 डायमेंशनल है तो सर्कल है, बट ये 3 डायमेंशनल होता है, जैसे बॉल होती है ना, बॉल, दिस इज अ टाइप ऑफ अ बॉल, स्फेयर इज अ बॉल। सो हेमिस्फेयर विल बी हाफ ऑफ द स्फेयर, दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम हो जाएगी हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। Then we move on towards the topic that is combination of the solids. So cone and cylinder, इसमें एक कोन रखा हुआ है सिलेंडर के ऊपर। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर टू, ये इसका हमने रेडियस मान लिया R2, तो पाई 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। एंड देन द सेकेंड इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई R1 स्क्वायर H1। तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 प्लस पाई R1 स्क्वायर H1। So pi is common, so 1/3 R2 square H2 plus R1 square H1, so that is equal to pi R square 1/3 H2 plus H1। हमने इसमें pi R square कॉमन ले लिया, क्योंकि R1 is equal to R2, उसको हमने R मान लिया। So the next is combination of the cube and cone. This is a एक आपका, जैसे मान लीजिए एक क्यूब है, क्यूब के अंदर एक कोन रखा गया है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू ए, दिस इज एच इज इक्वल टू ए, एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज हाफ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। इसकी हाफ हो जाएगी साइड, ये जो इसका जो रेडियस है ना, दैट विल बी हाफ ऑफ दिस साइड। Then the total volume of the conical part and this अब next part आता है आपका, एक कोन इज रेस्टिंग ओवर द हेमिस्फेयर, हाफ स्फेयर मतलब आधा स्फेयर है, उसके ऊपर एक कोन रखा गया है, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा टोटल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। सो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 is we take common, h plus 2r is the answer. And then we move on towards our fourth part, that is एक कोन है, कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है, इसका ऑपोजिट हो जाता है, तो उसका भी आंसर सेम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर इज कॉमन, h प्लस 2r इज आंसर। एंड देन वी हैव सिलेंडर, और इनके दोनों साइड्स पे हमने हेमिस्फीयर रखा हुआ है, एक ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द 2 हेमिस्फीयर्स। सो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। So pi r square is common, h plus 4/3 pi r, 4/3 r, and that is answer. And then we move on towards the next part is double cone. So this is a double cone. एक कोन ये है और एक कोन ये से अटैच्ड है. So this center to center distance is h2, center to center distance is h1. Volume of the cone CAA dash, ये वाला कोन, और प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन BAA dash. ठीक है. So 1/3 pi r square into OC. OC is center to this height, and then 1/3 pi r square into OB. This is h2. 1/3 pi r square OC plus OB. So 1/3 r square into h1 plus h2. Then the surface area of the double cone. इसका surface area कितना हो जाएगा? Curved surface area of the cone CA dash plus curved surface area of the cone BAA dash. So that is equal to pi into OA. Pi into OA. This is R1 plus pi into OA into AC. Pi R into height. Pi R into height. ये हो जाएगा pi R into AC plus AB. AC कितना है?
ए सी ये है और ए बी ये है, ठीक है। सो इसका हो जाएगा आपका, ये निकाला गया मैंने अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, L1 स्क्वायर इक्वल टू H1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर R1 स्क्वायर R स्क्वायर, R तो सेम है ना, तो L2 ऐसे निकल जाएगा, ऐसे L1 निकल जाएगा, L2 भी ऐसे निकल जाएगा। तो यही वैल्यूज हमने इसमें डाल देनी है। जो आपका आंसर आया था ये कर्व सरफेस एरिया की कॉन्टिन्यूशन में था। सो द नेक्स्ट इज सिलेंडर प्लस स्फेयर। दिस इज सिलेंडर, this part is cylinder, this part is sphere. So what total volume is equal to volume of cylinder plus volume of sphere, that is equal to pi r square h. This is the volume of the cylinder, and 4 by 3 pi r cube. This is radius is capital R, and इसका जो छोटा r ले लिया हमने स्मॉल r, तो पाई कॉमन हो जाएगा, r square h plus 4 by 3 r cube. ये इतना हाइट इसका h है, इसका रेडियस स्मॉल r है, इसका रेडियस r है, तो टोटल वॉल्यूम हमारी निकल गई। नेक्स्ट इज हेमिस्फेयर प्लस क्यूब। अभी हेमिस्फेयर इज रेस्टिंग ओवर क्यूब, सो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, इसका जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है, और माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। इस हेमिस्फेयर को ऊपर का है, नीचे का तो हमारा इसके अंदर चला गया, तो इसलिए वो माइनस का जाएगा, प्लस कर्व्ड एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। सो क्यूब हैज 6 साइड्स, दैट इज इक्वल 6a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। नाउ 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि माइनस पाई आर स्क्वायर क्या, इसका जो बेस है ना, बेस एरिया ऑफ द दिस बेस एरिया इज ऑफ द हेमिस्फेयर, दैट इज पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल ले लिया हमने, और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। टोटल हेमिस्फेयर में से हमने माइनस कर दिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्यूबॉइड प्लस हाफ सिलेंडर। दिस इज अ क्यूबॉइड and over is resting is half cylinder, not full cylinder. So total volume is equal to volume of the cuboid plus volume of the half cylinder, that is equal to LBH. इसका L ये लेंथ हो गई, B width हो गई, और H हाइट हो गई, तो प्लस हाफ सिलेंडर हो जाएगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर H, सो पाई आर स्क्वायर H। सो R इसका जो हो जाएगा, जो सिलेंडर का R हो जाएगा ना, डेट विल बी हाफ ऑफ द, दिस इज इतना हो जाएगा इसका विड्थ में हाफ हो जाएगा इसका ऑफ द विड्थ। एंड देन वी मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हाइट ऑफ द हाफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्यूबॉइड L। ये देखिए ना, ये जो हो जाएगा आपका हाइट ऑफ द हाफ सिलेंडर, हाइट ऑफ द हाफ सिलेंडर मतलब कि ये जो हाइट है ना, ये है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हाइट है, इट इज इक्वल टू L, ये L हो जाएगा यहाँ तक। सो दिस इज पाई इंटू 1/2 हाफ पाई आर स्क्वायर H। R तो आपका 1/2 आ गया, ये देखिए 1/2 निकाला था ना, 1/2 ऑफ B होल स्क्वायर इंटू L। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू L, दैट इज इक्वल टू 1/8 पाई B स्क्वायर L। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH प्लस पाई 1/8 पाई B स्क्वायर L, BL आ गया इंटू H प्लस पाई B डिवाइडेड बाय 8। So frustum of a right circular cone. This is like a cone, and frustum का मतलब होता है कि जैसे हम इसको किसी कोन को कट कर देते हैं किसी पॉइंट पे, आपके we cut it in two parts. So when we cut it, this part is separated and this part is separated, and we get this. This is known as frustum of a right circular cone. This is known as a frustum of the circular cone. When we cut the cone from some center or some point, and we get two cones. So we have to get two parts. One is the cone part, conical part हमने हटा देना है, क्योंकि ये cone पे फॉर्म में इसको हटा दिया और ये आ गया हमारा, तो ये this is known as frustum of the right circular cone. So this is the frustum. Let B dash A dash with a friction A dash clutch of the slant area L. This is height L. So according to the Pythagoras theorem, this L square that is equal to H square plus R minus R whole square। हाँ, ये जो है ना आपका, ये डिस्टेंस हमें चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस के लिए हमें इस R में से, टोटल R में से ये वाला R माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस R माइनस R होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू पाई इंटू R1 प्लस बेयरिंग सरफेस ऑफ द क्लच, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। सो पाई R L, पाई R H होता है ना, तो पाई R स्क्वायर H, पाई R इंटू H L। So this is R1 plus R2.
our volume is equal to 1 by 3 pi into h r1 square plus r2 square plus r1 r2. So this is the next we move on towards cylinder plus frustum cone. This is a cylinder, and over it is this is the frustum of the cone. So the slant height L will be equal to h square under root h square plus r1 plus minus r2 whole square. So this is suppose this is r1 total यहाँ तक है, तो इसमें से हमने ये माइनस कर देना है, तो हमारा ये आ जाएगा, तो कि r1 minus r2 है. So h square plus r1 minus r2 whole square. Total surface area is equal to curved surface area of the frustum of the cone plus area of the base plus curved surface area of the cylinder. तो पहले तो हमने फ्रस्ट्रम का सरफेस एरिया निकालना है, उसके बाद सर्कुलर बेस का एरिया देना है, और फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. ये बेस का इसका फ्रस्ट्रम का एरिया हो गया, उसके बाद बेस का हो गया, और उसके बाद इसका सिलेंडर का एरिया हो गया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा. सो दिस इज नाउ नेक्स्ट इज equal to pi into r1 plus r2 whole into L plus pi r square pi r1 square plus 2 pi r2 into h2. So this is the curved surface. This is in continuation with this one, curved surface area of the frustum, and that is equal to pi into r1 plus r2 whole into L, or area of the base, circular base pi r1 square, or curved surface area of the cylinder, that is equal to pi r square into pi r square 2 pi r h 2 pi r 2 into h2 ये हो गया. So total volume is equal to volume of the frustum, and because we have to just calculate this one, क्योंकि जैसे ये बाल्टी रखी हुई थी इसके ऊपर, तो ये इसमें वाटर हमने कैलकुलेट करना था, तो वाटर नीचे लीकेज नहीं होगी इसके, तो ये बेस है, तो इसका हमने फ्रस्ट्रम का ही वॉल्यूम निकालना था. तो 1 by 3 इंटू पाई इंटू r1 प्लस r2 प्लस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस r1 इंटू r2 इंटू होल इंटू h. सो बकेट विल बी कंटेन वाटर. We move on towards the last topic, that is shuttlecock. This is a shuttlecock like a thing. तो इसका हमने जैसे L स्क्वायर, दिस इज L, सो L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर. सो दिस इज r1 एंड दिस इज r2, सो दिस इज r1, दिस इज r2. सो इसमें से हमने ये माइनस कर दिया, तो ये आ गया r1 माइनस r2. External surface area of the shuttlecock, that is equal to curved surface area of the frustum plus surface area of the hemisphere. So pi into r1 plus r2 whole into L plus 2 pi r1 in square. तो ये शटलकॉक का हमने एक्सटर्नल सरफेस एरिया निकालना था. तो इसका ये शटलकॉक है. शटलकॉक इज लाइक दिस. सो दिस इज let's say this is a frustum of the cone, and this is half hemisphere. This is hemisphere, and this is a frustum of the cone. So we have combined it, so you get the surface area of the total volume. So ये आपका आ गया है. तो if you like my channel, just need to subscribe my channel and press the bell icon to receive the notification. And thanks for watching. Thanks for support. Thank you.